Hi guys, so we'll be starting with lesson 12, the conversion of business entities. Now, here we see how does a company convert itself into other forms of business entities. Like for example, conversion of a private into public or public into private and so on. So these are the kinds of conversions of entities that we'll be looking at. Simply speaking, can a private company convert itself into a public company? Answer is yes. Is vice versa allowed? Can a public company be converted into private company? Answer is yes again. So there is no restriction on the structure that you need to have. You can always change it in future. This entire power of conversion from one form to another is given under section 18 of Companies Act 2013, which says that a company can convert itself into other forms of business entities. Let's see each one of them and finish it off. Firstly, the most important section that you need to know is your section 18, which gives the powers to company to convert itself into any other class as it may like. Now, when you do that, do you think you have to alter the MOA and AOA also? Memorandum में क्या दिया रहता है? Name of the company, name, place, object. Wouldn't the name of the company change? Like suppose if it was ABC Private Limited, now they'll have to remove the word private and now it will be ABC Limited. So there is going to be an alteration in the MOA. So this alteration of MOA is covered under section 13. Would they have to alter their articles of association? Alteration of articles of association is given in your section 14. Would the articles be altered as well? Answer is yes, because a private company has a lot of restrictions in the articles, like the restriction on transfer of shares, restriction on inviting public. ये सारे restrictions निकालने पड़ेंगे. और section 18 के अंदर there is given the power to companies to convert from one form to another, from one type to another. Clear it now? So let's see each of them. These three sections you need to know by heart. कोई भी पूछूंगा ना मैं, ये तीनों सेक्शन तुम्हें लिखने पड़ेंगे. Now let's see each one. Conversion of a private company into public. The first conversion that we are seeing, a private company wants to convert itself into public. So what are the procedural requirements? If I ask you, what all will you quote? सबसे पहले तुम बोलोगे yes, a company has a power under section 16. They have power to convert. What they need to do, they need to alter their MOA, because अभी ये private company है और अभी public limited हो जाएगी तो name बदलेगा. सेक्शन 14 भी हिट होगा, बिकॉज प्राइवेट कंपनी के अंदर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो आर्टिकल्स में रिस्ट्रिक्शन मेंशन्ड होते हैं, वो सारे रिस्ट्रिक्शन निकालने पड़ेंगे ना. आफ्टर ऑल दिस कन्वर्जन प्रोसेस, देन अ न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विल बी मेड. समटाइम्स द कंपनी वुड वांट अ न्यू नेम, सो न्यू नेम भी कर सकते हो तो इफ यू वांट. क्लियर है ना? सो इफ यू सी सेक्शन 14 हिट होगा. अब मुझे बताओ कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक में जा रही है, अच्छी बात है या नहीं? अ प्राइवेट कंपनी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी. इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? क्या हो रहा है? बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? तो बिजनेस लग रहा है कि एक्सपैंड हो रहा होगा, तो अच्छी बात है. तो हम लोग लॉ इज वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट यू हैव इम्प्रूव्ड एंड ट्राइंग टू ग्रो इनटू अ लार्जर स्ट्रक्चर. सो इसके हम लोग पहले रिक्वायरमेंट्स इन शॉर्ट देखते कैसे हैं. सो विच ऑल सेक्शन यू नीड टू रिमेंबर? सेक्शन 18, 13, 14. सेक्शन 15 भी है. जो भी ऑल्टरेशंस करोगे आर्टिकल्स के अंदर, मेमोरेंडम के अंदर, ये ऑल्टर्ड आर्टिकल्स एंड MOA इज टू बी नोटेड ऑन एवरी कॉपी. तो जितने भी कॉपीज है वो चेंजेस वहां पे नोटिफाई करने पड़ेंगे of the altered MOA and AOA.
Now coming to this private company being converted into a public company, it is a good thing, we should be happy. तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या लगता है, कोई भी कन्वर्जन कर रहे हैं हम लोग, कन्वर्जन ऑफ एनी बिजनेस एंटिटी, विच टाइप ऑफ रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा, ऑर्डिनरी और स्पेशल? छोटी बात है क्या, स्ट्रक्चर बदल रहे हो तो कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए रहेगा, यू विल रिक्वायर स्पेशल रेजोल्यूशन. अगर स्पेशल रेजोल्यूशन है तो कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा हमें हमेशा, दैट इज योर MGT 14. So let's see. First is private company wants to convert into public, तो बोर्ड मीटिंग लेनी पड़ेगी, जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी पड़ेगी और स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा जिसके अंदर MGT 14 फाइल करना पड़ेगा. अब ये तो हो गया, और एक इनकॉर्पोरेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, कन्वर्जन फॉर्म. दैट कन्वर्जन फॉर्म इज गिवन इन INC 27. दिस यू कैन मार्क इट एज इंपॉर्टेंट. INC 27. It is a form for conversion of private into public और public into private. एक ही फॉर्म है. अगर तुमको प्राइवेट से पब्लिक जाना है जो अभी कर रहे हो, या उल्टा भी आ रहे हो तो भी INC 27 ही फाइल करना है, वो देखेंगे हम लोग. तो इसका तुम प्रोसीजर खत्म फर्स्ट वाले का. ओके, सो special resolution, but before that board decides, then they call a general meeting, then they call a special resolution, and they fill the form for conversion. That is it. Let's see. Call a board meeting. When you're calling a board meeting, you will follow SS1 and a notice of board meeting, pass a board resolution, decide the time, place, agenda for the general meeting to get the approvals, then pass a board resolution, then issue notice of general meeting. Now this will be as per SS2, Secretarial Standards 2 for general meetings. Hold a general meeting, pass a special resolution, and you have to fill form MGT 14, which is the conversion from private to public or public to private. Which form? INC 27. You need to know it by heart. And इसके साथ में ये सारे अटैच मिल जाएंगे, altered articles, altered MOA, AOA, true copy of the board resolution, योर शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन, ये सब अटैच करना पड़ेगा. एंड दैट इज इट, यू कैन कन्वर्ट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कन्वर्शन ऑफ अ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट. क्या हो रही है, कंपनी डाउन साइज कर रही है, तो इट सीम्स इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग. इट इज अलाउड, बट हम लोग इसके अंदर बोलते हैं आपको थोड़ा ज्यादा कंप्लायंस करेगा, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, बड़े से छोटी हो रही है कंपनी. सो अ पब्लिक कंपनी is being converted into private company. So it seems that the business might not be working that well. So which resolution, वहां तक तो प्रोसेस सेम ही होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग एंड योर स्पेशल रेजोल्यूशन. कन्वर्जन फॉर्म भी सेम है. कन्वर्जन फॉर्म क्या बोला, कौन सा सेक्शन है, कौन सा फॉर्म नंबर है, INC 27. देखोगे सेम है ये. इट इज अ फॉर्म ऑफ कन्वर्जन. या तो तुम प्राइवेट से पब्लिक जा रहे हो या पब्लिक से प्राइवेट जा रहे हो, दोनों का सेम फॉर्म. नाउ इन एडिशन टू दिस, जैसे यहां पे देखोगे कि कंपनी डाउन साइज कर रही है, तो हम लोग को थोड़ा एक और लेवल ऑफ कंट्रोल डालना पड़ेगा. तो यहां तक तो सेम है. आगे देखो, एक और चीज है, RD का अप्रूवल लेने बोलेंगे कि आप जाओ प्लीज RD का अप्रूवल देखो. RD स्टडी करेगा कि कंपनी क्यों डाउन साइज हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, ये किस RD अप्रूवल विल बी टेकन इन RD1 फॉर्म. रीजनल डायरेक्टर विल टेल कि भाई आप छोटे हो रहे हो, आप डाउन साइज कर रहे हो, एक काम करो प्लीज, एक एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट इशू करो इन INC 25A. उसके अंदर क्या होता है, तुम इन्फॉर्म करते हो दुनिया को कि भाई मैं डाउन साइज हो रहा हूं, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो प्लीज कंप्लेन कर सकते हो. एक बार RD will hear the objection and then pass the order. तो जो ऑर्डर दिया है, ऑर्डर कन्वेड बाय RD, if RD has given you the approval, then you have to inform the ROC in INC 28. Okay? तो अगर तुम देखोगे, सबसे बिगेस्ट इज योर सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर यू कुड से योर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. उसके अंदर तुम देखोगे यू हैव योर रीजनल डायरेक्टर. रीजनल डायरेक्टर के अंदर यू कैन से यू हैव योर ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. और सारी कंपनीज
जनरली आरओसी से कोऑर्डिनेट करते हैं, बट सिंस ये बड़ी चीज है तो हम लोग किसको दे रहे हैं, आरडी का अप्रूवल ले रहे हैं, और आरडी एक बार अप्रूवल दे देता है इन हिज, वी टेक ए सीक हिज अप्रूवल इन आरडी 1, he gives his approval, then we inform the ROC also. In INC 28 में company informs the decision of the RD to ROC. In addition to that, you have to ensure that RD को जो तुम apply करोगे, if the information is found to be defective, incomplete, RD will direct the applicant to file a resubmission कि आप लोग resubmit करो, आपके application complete नहीं है, in GNL5, RD GNL5. GNL is for general form 5. Maximum 2 such resubmissions are allowed. No conversion is allowed if the company is under investigation. And when objection is received, RD will record the same and then hold a hearing and then pass the order. जो भी order pass करेंगे हम लोग उसको INC 28 के अंदर ROC को inform करेंगे. Let's see from the module. Which is the form for conversion? It is your INC 27. Some of the common points as I told you: name, change the name, then alter your MOA, AOA, and new certificate of incorporation. Let's see. So, procedure of conversion of a public company into private company. Just imagine that this is not a very good thing. So therefore एक additional protocol आ जाता है, that is RD approval. You can write it there, RD approval. और एक बार RD approval दे देगा हमको INC 28 में ROC को inform करना है. बाकी के सब context सेम है, hold a board meeting, board resolution पास करोगे, फिर special resolution पास करोगे, special resolution का form MGT 14 ROC के साथ में देना है, फिर new certificate of incorporation मिलेगा. Now application under section 14 for conversion of public company into private. I told you 13 is alteration of MOA, 14 is alteration of AOA. वो ठीक है, किसको अप्रूवल देना पड़ेगा for conversion of private public into private? So application shall be given with RD in form RD1. It shall be accompanied with all the details ki what are the altered MOA, AOA, details of the directors, everything. Then the list of the creditors. Application shall be given with the details of the board meeting, general meeting, the reasons for conversion, the details of the conversion date within the last 5 years, outcome, etc. Okay, तो वो attachments है. You will have to take the list of the creditors and the debenture holders at the registered office has to be given. एक बार वो हो जाएगा, आरडी क्या बोलेगा कि भाई आप डाउन साइज हो रहे हो, मुझे प्लीज सेटिस्फाई करना है कि कुछ रॉन्ग नहीं हो रहा है, सो प्लीज एडवर्टाइज इन INC 25A. सो एडवर्टाइजमेंट विल बी मेड. देन अगर तुमने एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ भी कम दिया है तो देन दे कैन रीडायरेक्ट यू टू furnish such additional information in the general form GNL 5. More only 2 resubmissions are allowed, then it will get rejected. If objections are received, then RD will hear a hearing रखेंगे and then they will hear both the parties and then pass an order, either accepting or rejecting the application. If no consensus could be received, RD can reject the application. Okay, no on completion. No approval will be given if any investigation is going on in the company or inspection by any authority. Once the inspection is completed, then we can allow the conversion. Very, very important, INC 28. Order of the RD should be filed with the registrar in form INC 28. Let's see again. क्या क्या था? Board meeting, general meeting, special resolution. देन एक्स्ट्रा थिंग में किसका अप्रूवल चाहिए? आरडी अप्रूवल इन RD1. आरडी के पास में जाओगे, आरडी विल से प्लीज जाके न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट करो इन फॉर्म 25. एक बार तुमने फॉर्म एडवर्टाइजमेंट किया, ऑब्जेक्शंस रहेंगे, ही विल हियर, ही कैन आस्क फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन एंड देन ही विल पास द ऑर्डर. जो भी ऑर्डर आरडी पास करेगा वो तुमको आरओसी को INC 28 में देना है.
क्लियर है ना? तो ये तुम्हारा उसका समरी है. टिल योर तो इट इज सेम, only this is the additional part. Okay, now moving forward, the next one we are seeing conversion of a private company into OPC. अब मुझे बिना सोच के बोलो कि कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए रहेगा, ऑर्डिनरी और स्पेशल. कॉमन सेंस है, बोर्ड मीटिंग तुम रखोगे, जनरल मीटिंग करोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन ही होगा हर एक कन्वर्जन के लिए विच यू रिक्वायर स्पेशल रेजोल्यूशन. अब अगर ओपीसी में जाना है, इफ अ वन प्राइवेट कंपनी वांट्स टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू ओपीसी, तभी इट कैन कन्वर्ट इफ द पेड अप कैपिटल इज अप टू 50 lakhs और टर्नओवर इज अप टू 2 crores. ओके, देन ओनली यू कैन कन्वर्ट. अगर इससे ज्यादा है तो कन्वर्ट नहीं हो सकते, बिकॉज 1% कंपनी है, इट कैन हैव मैक्सिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 50 lakhs और इट कैन हैव अ मैक्सिमम टर्नओवर ऑफ 2 crores. अगर ये एक्सीड होता है ना, तो हमको मैंडेटरीली बोलते हैं, इफ दिस इज एक्सीडेड देन वी से यू रिक्वायर मैंडेटरी कन्वर्जन. मतलब क्या, ओपीसी बड़ी होगी या छोटी? ओपीसी 1% कंपनी तुम्हारे हिसाब से इट वुड बी अ मैसिव ह्यूज कंपनी और स्मॉल कंपनी? स्मॉल कंपनी. तो स्मॉल, हाउ डू यू डिफाइन स्मॉल? सो दे सेड कि स्मॉल मतलब क्या, कि तुम्हारा पेड अप कैपिटल मैक्स इतना हो सकता है और टर्नओवर मैक्स इतना हो सकता है. इसके ऊपर गया ना टर्नओवर, सोचो मेरा टर्नओवर चला गया 2 करोड़ के ऊपर, सो लॉ इज सेइंग अभी ओपीसी नहीं रह सकते आप, आपको कंपलसरी कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैंडेटरी कन्वर्जन इनटू अ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, बिकॉज ओपीसी को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. बट अगर तुम इतने बड़े हो जाओगे तो देन वी से प्लीज कन्वर्ट एंड फॉलो द नॉर्मल लॉज. सो अ प्राइवेट कंपनी कैन कन्वर्ट इनटू ओपीसी ओनली इफ ओपीसी इज विद इन दैट लिमिट्स. तो लिमिट के अंदर होना चाहिए तो ओपीसी के अंदर रह सकते हैं, तो यू विल पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन. अब INC 6, नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस, यू कैन नोट इट डाउन. ओपीसी के 2 फॉर्म्स है, INC 5 एंड INC 6. INC 6 is a form for conversion. It is a conversion form from OPC to private or public और प्राइवेट इंटू ओपीसी. तो इट इज एक फॉर्म से दोनों कन्वर्जन फॉर्म है, या तो तुम एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में जा रहे हो. ओपीसी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट कंपनी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू ओपीसी. विच फॉर्म यू रिक्वायर? INC 6. INC 5 is intimation of increase in thresholds, intimation of exceeding threshold. मतलब अगर सोचो एक ओपीसी अपने लेवल्स क्रॉस कर दिया टर्नओवर या पेड अप कैपिटल का, तो उनको सबसे पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा आरओसी को कि भाई मैं बड़ा हो चुका हूं, मेरे टर्नओवर पेड अप कैपिटल्स बड़े हो चुके हैं, आई विल इन्फॉर्म इन INC 5. अब मुझे मैंडेटरीली कन्वर्ट होना पड़ेगा. कन्वर्जन फॉर्म कौन सा है? INC 6. सो दीज आर द फॉर्म फाइलिंग्स. स्पेशल रेजोल्यूशन तक तो हमेशा सब जगह सेम होगा. फिर तुम्हारा स्पेशल कन्वर्जन फॉर्म कौन सा है? INC 6. अगर ये कंपलसरी कन्वर्जन में आ रहा है कि लिमिट क्रॉस होके मजबूरी में कन्वर्ट हो रहे हो, तो INC 5 भी भरना पड़ेगा. फिर बिफोर फाइलिंग यू हैव टू गेट NOC फ्रॉम द मेंबर्स एंड द क्रेडिटर्स कि भाई हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हैं, तो सबका NOC लेना पड़ेगा. लेट्स सी फ्रॉम द मॉड्यूल. कन्वर्जन ऑफ 1% कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, सबका एक ही सेक्शन है, सेक्शन 18 कन्वर्जन फॉर्म. व्हेन कन्वर्जन ऑफ OPC इनटू प्राइवेट कंपनी, कभी मैंडेटरी कन्वर्जन करना पड़ेगा. मैंडेटरी कब है कन्वर्जन? When the paid up capital of the OPC exceeds 50 lakhs or turnover exceeds 2 crores, then it shall cease to be continue as a OPC
and requires mandatory conversion. तो इसमें कौन से फॉर्म फिल होंगे, दो ही याद रखने हैं. INC 5 के अंदर इंटीमेट करोगे कि भाई हम लोग बड़े हो गए और क्रॉस कर दिया लिमिट, और INC 6 इज योर कन्वर्जन फॉर्म, कन्वर्ट फॉर्म. क्लियर? एंड इमेजिन अगर एक कंपनी है जो लिमिट के अंदर है, सो देन such 1% company shall be required to convert itself within 6 months from the date on which it has increased beyond the limits. तो 6 महीने के अंदर कन्वर्ट होना पड़ेगा. They have to alter the MOA and AOA. Can you tell me which section alteration of MOA? It is your section 13 and alteration of AOA it is your section 14. हमेशा याद रखना ये सब तुम्हारे सेक्शन फिट होंगे. और एक और सेक्शन है सेक्शन 15. सेक्शन 15 है कि जो भी ऑल्टर्ड MOA और AOA है वो सब जगह सब कॉपीज के ऊपर नोटिफाई करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि तुम एक ही कॉपी के ऊपर तुमने नोटिफाई किया, दूसरे MOA और AOA की कॉपीज है उसके ऊपर चेंज नहीं मेंशन्ड है. तो जितनी भी कॉपीज है तुम्हारे पास में MOA AOA उसके सारों कॉपीज के ऊपर चेंजेस आ जाना चाहिए. INC 5 is what? Notice to registrar that it has ceased to be a OPC and it now is required to convert itself into private or public. Clear है ना? और obviously तुम अभी OPC में कन्वर्ट हो चुके हो, तो तुमको OPC से तुम प्राइवेट में चले गए हो फॉर एग्जाम्पल, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे. यू हैव टू इंक्रीज योर नंबर ऑफ मेंबर्स. फिर और क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं प्राइवेट कंपनी के लिए वो मेंशन करने पड़ेंगे, इनकॉर्पोरेटर रिस्ट्रिक्शंस. फिर और क्या होगा, डायरेक्टर्स ओपीसी में एक ही चाहिए रहता है, यहाँ पे मिनिमम 2, तो वैसे तुमको इंक्रीज करने पड़ेंगे. तो ये सब कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस भी लाने पड़ेंगे. तो पहले बोर्ड मीटिंग एजेंडा, फिर तुम्हारा INC 5 के हम लोग लिमिट क्रॉस कर दिए हैं. देन INC 6 is a form for conversion. स्पेशल रेजोल्यूशन लोगे तो MGT 14. ये सारों के अंदर तुमको DIR 12 फाइल करना पड़ेगा. DIR 12 क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ KMPs, की मैनेजरल पर्सन और डायरेक्टर्स. सो इट इज बेसिकली एनी चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड. अब तुम ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट हो रहे हैं तो DIR 12 फाइल करना पड़ता है. कंपनी इंटीमेट्स ROC के भाई हमारे नए डायरेक्टर्स कौन है. ओके, once this is done then we are done with this. Now coming to conversion of private company into 1% company. अब 2 लोग थे, उसमें से एक अपना निकल जा रहा है और एक ही चलाने वाला है कंपनी. तो वन कैन सेल ऑफ हिज स्टेक कि भाई तू मुझे मेरा इतना पैसा दे दे, मेरा शेयर्स तू रख ले और अभी 1% में बना देना. तो व्हेन कैन अ प्राइवेट कंपनी बी गॉन इनटू अ 1% कंपनी, अगर उसका लिमिट कितना होना चाहिए, इट शुड नॉट एक्सीड अ प्राइवेट कंपनी हु हैविंग अ पेड अप कैपिटल ऑफ 50 lakhs or less and turnover of 2 crores or less may convert itself into 1% company. It shall obtain in writing from the members and the creditors. अब इसमें भी प्राइवेट कंपनी है, कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए, MGT 14. फॉर्म फॉर कन्वर्जन कौन सा है, INC 6. ना जब भी अटैचमेंट्स होते हैं, जो भी फॉर्म्स के कॉमन सेंस है, बोर्ड मीटिंग का अटैचमेंट, जनरल मीटिंग का अटैचमेंट, ऑल्टर्स MOA का अटैचमेंट, डायरेक्टर्स के डिटेल, डायरेक्टर्स की अंडरटेकिंग, ऑडिटर्स का सर्टिफिकेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सब तुम्हारे अटैचमेंट्स रहेंगे. लिस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा. And then एक बार everything is satisfied, then you will get issued a new certificate of incorporation. Clear है ना? तो board meeting, notice, सब general है, can read it up. Okay, INC 6, then it is done. Now coming to a conversion of Section 8 company into any other kind. Section 8 company होती क्या है? It is a not for profit company. Not for profit company. Imagine it wants to convert into a profit making company. कर सकती है वो, yes or no?
कैन आज बीइंग ह्यूमन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कल उठ के बोल रहा है कि एक काम करते हैं, अभी जो भी पैसा आएगा हम लोग प्रॉफिट रख के शेयर होल्डर्स में प्रॉफिटेबल डिविडेंड बांटेंगे. दे वांट टू कन्वर्ट देमसेल्व्स. इज इट अ गुड थिंग और समथिंग इन विच हम लोग को बहुत हाई लेवल्स ऑफ प्रोटोकॉल्स डालने पड़ेंगे, बहुत हाई लेवल्स ऑफ कंट्रोल्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के अंदर बहुत सारे रिलैक्सेशन मिले होंगे, बहुत सब फंडिंग मिली होगी, इनकम टैक्स अथॉरिटीज ध्यान रखेंगे इसके ऊपर. तो ये जो रहता है ना, तुम्हारे एनजीओ को प्रॉफिटेबल करना है तो बहुत हाई लेवल्स ऑफ कंट्रोल्स इशू करने पड़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स सी क्या होगा. सबसे पहले अपना कांस्टेंट सेक्शन 8 कंपनी है तो कौन सा रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा हम लोग को? स्पेशल रेजोल्यूशन. स्पेशल रेजोल्यूशन लेने के पहले तुमको बोर्ड रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी, एजेंडा रखना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किए, फिर प्रोसीड टू कॉल अ जनरल मीटिंग. जनरल मीटिंग का नोटिस भेजोगे, एजेंडा में डालोगे, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे. अब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे तो आरओसी को स्पेशल रेजोल्यूशन के डिटेल्स कौन से फॉर्म में देते हैं? MGT 14. यहाँ तक सब कन्वर्जन्स का सेम होता है. फिर स्पेसिफिक आता है कि भाई इसके अभी स्पेसिफिक फॉर्म्स कौन से हैं. सो इट इज योर INC 18, 19 एंड 20. अब सबसे पहले तुम्हारी प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ प्रॉफिटेबल कंपनी. तो बोल रहे पहले RD का अप्रूवल लो. जाओ RD का अप्रूवल लो इन INC 2018. RD हमेशा यही बोलता है भाई प्लीज जाओ एक पब्लिक एडवर्टाइजमेंट करो. इट विल बी इन INC 19. ओके, INC 19 के अंदर यू हैव अ पब्लिक एडवर्टाइजमेंट. और INC 20 के अंदर एक बार सब कन्वर्जन हो गए, RD ने अप्रूवल दे दिया, देन नोटिस टू ROC ऑफ RD अप्रूवल विल बी इन INC 20. मतलब यहां पे एक एनजीओ है जो कन्वर्ट होना चाहता है इनटू प्रॉफिट मेकिंग. बहुत कम चांस है, बट अगर कर रहे तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा. सीधा RD का पूछो, RD का अप्रूवल लो. RD क्या बोलेगा? पहले पब्लिक नोटिस डालो, देखो किसको ऑब्जेक्शन है क्या, तो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट कर दिया. देन हियरिंग होगी, इनकम टैक्स अथॉरिटीज की NOC होगी, रेगुलेटर्स का NOC होगा, फिर बाद में तुमको अप्रूवल देगा RD का जो ऑर्डर दिया है ROC को पता चलेगा अपने आप, कोई तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा. सो INC 20 के अंदर नोटिस टू ROC ऑफ RD अप्रूवल. इसके अंदर और कौन से प्रोविजन है? NOC फ्रॉम इनकम टैक्स अथॉरिटी. व्हाट इफ द एनजीओ हैज सरप्लस फंड्स? तो ये सरप्लस फंड जो रहेंगे इट विल बी डिपॉजिटेड इन इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड. अगर सेक्शन 88 कंपनी के अंदर डोनेशंस थे और वो डोनेशंस बच गए हैं, अनयूटिलाइज्ड है, तो वो जो है हम बोलेंगे पहले IPF में डाल दो, फिर आप रीस्टार्ट कर सकते हो एज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी. एंड एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा फ्रॉम अ प्रोफेशनल दैट एवरीथिंग इज डन एज पर लॉ एंड द कंपनी इज सॉल्वेंट. क्लियर है ना? तो ये तुम्हारा इसका प्रोविजन है. नाउ लेट्स सी फ्रॉम द मॉड्यूल. स्पेशल रेजोल्यूशन. ना जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन लेते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देंगे कि क्यों कन्वर्ट करना चाहते हैं, पूरे डिटेल्स. MGT 14 कौन से 3 फॉर्म बोला था इसके स्पेसिफिक? INC 18 RD अप्रूवल. INC 19 में क्या बोलेगा RD के? प्लीज जाके एक पब्लिक नोटिस करो एट योर ओन एक्सपेंस इन इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर मीडियम एंड गेट इवन पुट इट ऑन योर वेबसाइट. लेट पीपल ऑब्जेक्ट. मे बी द इनकम टैक्स अथॉरिटीज को भी दो, चैरिटी कमिश्नर को भी दो, एनी अदर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट who has jurisdiction, they all will be given an opportunity of being heard. If there is any objection, then the directors will also have to give a declaration that they are solvent and no mismanagement is being done and no dividend was ever given to any of the members. क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी cannot distribute dividend profit among the shareholders. फ्यूचर से करना चाहते हो, उनको बताना पड़ेगा कि उन्हें जो भी exemptions, benefits, privileges मिले वो सब give up करने तैयार होने चाहिए. And they must be ready to get, all the authorities will give them a NOC. Okay, then you have to get a certificate from the professional that all the conditions that laid down on the act and rules have been followed. Then RD shall issue an order approving the conversion, but he will not allow impose on certain cases
लेट्स सी, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, द कंपनी शैल बी गिविंग अप ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस, आरडी विल अलाउ provided you give up your exemptions, then the accumulated profit will be given in IPF, the company shall be given a reasonable opportunity of being heard, if any conditions are being imposed or application is being rejected, opportunity of being heard will be given. Thereafter you have to file with the registrar INC 20, the copy of the approval of the RD, and a fresh certificate of incorporation will be issued. तो यहाँ तक देखोगे सब कुछ सेम ही है, बट यू हैव टू गेट INC 80, 90, 20. Okay, now let's see the next one. Conversion of a company into LLP. अब देखोगे company is being converted into limited liability partnership. Law also provides that you can convert a LLP into company. दोनों ही करने वाले हैं. अब कंपनी में बहुत सब लॉज होते हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा लेवल्स ऑफ कंप्लायंसेस होता है, सो यू डोंट वांट टू कन्वर्ट योर कंपनी एंड गेट इट इनटू अ LLP. सो लेट्स सी. So for conversion of a company into LLP, these are the following details that you need to fulfill. Now imagine a company is being converted into LLP. तो LLP के जो भी इनकॉर्पोरेशन फॉर्म्स है वो भरने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हें LLP बना रहे हो अभी. तो पहले द नेम विल बी इन फॉर्म 1, LLP फॉर्म्स है ये सब, टेक अ नोट ऑफ इट. द इनकॉर्पोरेशन फॉर्म ऑल्सो कॉल्ड एज फिलिप, ओके, इज इन फॉर्म 2, ऑल कॉल्ड एज फिलिप. देन फॉर्म 3 इज द LLP एग्रीमेंट, द LLP का जो अग्रीमेंट होगा. द conversion form that from a company into LLP is in your form 18, and once the conversion is done, then a new certificate of incorporation or registration will be issued in form number 19. These are the important forms. So let's see. Form 18 needs to be filed, that is the conversion form needs to be filed with form 2, that is form 2 is an incorporation form or called as Philip. Then obviously ऑब्टेन डिन नंबर, बिकॉज कंपनी के अंदर जैसे डिन होता है वैसे ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं, जो पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डे टू डे फंक्शन इन कंप्लायंस विद द लॉज आर कॉल्ड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. ओके, सो जस्ट लाइक कंपनी हैज डायरेक्टर्स, LLP हैज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. So the obtain DIN for the designated partners, call the board meeting of the directors, pass a resolution for conversion, apply for the name of the LLP. LLP 1 is for the name availability. Then obtain a certificate from the ROC, draft the partnership agreement. It will be in which form? We had seen LLP 3. Form Philip is the incorporation form. Okay. So it is incorporation of limited liability partnerships. Form 18 conversion form, and then a certificate of incorporation will be issued or registration that the LLP has been converted will be in form number 19. Form 3 में क्या था? LLP agreement. Okay. Then you get a certificate of incorporation as LLP. Now coming to your conversion of your company limited by guarantee into a company limited by shares. अब क्या होता है ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स? खाली हम लोग समझ रहे कि कन्वर्ट कैसे करना है, कौन सा कंपनी है दोनों, कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए रहेगा. सिंपल प्रोसेस है. सी, अगर तुम कभी नहीं भी आया तुमको, बट यू नो कि कन्वर्जन हो रहा है फ्रॉम वन कंपनी इनटू अनदर, unlimited company into a limited company or guarantee, you require to form, okay, you require board meeting, general meeting, special resolution. ये हमेशा सेम होगा. Conversion form INC 27, public notice will be told that you should give in INC 27A. और जब नोटिस करोगे तब NOC from creditors. तुम देखो यहां पे क्या हो रहा है,
unlimited company having unlimited liability is converted into a company with limited liability. So that time you require these special resolution तक सब same होगा. Conversion forms, public notice, NOC from creditors because तुम्हारी liability भी limited हो रही है. Auditor certificate, declaration of solvency from the directors, certificate of incorporation will be issued in INC 11A. You won't be eligible for conversion if you are in negative net worth or striking off, winding up, or investigation is going on against the company, or if the company is in default of returns, directors are in default of paying the call money. तो ऐसे अगर नॉन कंप्लायंट और अच्छी कंपनी नहीं है तो हम लोग उनको लाइबिलिटी अभी लिमिटेड नहीं करने देंगे. प्रॉब्लम के टाइम पे तुम अपनी लाइबिलिटी लिमिटेड कर रहे हो तो. सो लेट्स सी. तो यहाँ पे सेम है. यू रिक्वायर अ स्पेशल रेजोल्यूशन. स्पेशल रेजोल्यूशन लोगे तो फॉर्म MGT 14 and INC 27 form, and the certificate of incorporation will be issued in INC 11B. This is what we just did. Conversion of an unlimited company into a limited company. So यहाँ पे एक करेक्शन कर रहा है मॉड्यूल में. They've given form INC 2 नहीं है 27 है. So first of all कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल रेजोल्यूशन. कौन सा फॉर्म भरना है? INC 27. ये भी 27 लिखा है, नॉट 2. तुमको बोलेंगे एक काम करो, एक पब्लिक नोटिस करो. इट विल बी इन INC 27A. तुमको तुम्हारी लाइबिलिटी लिमिटेड करवानी है. सो डायरेक्टर्स को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ऑडिटर्स को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा दैट दे आर सॉल्वेंट. नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा फ्रॉम द क्रेडिटर्स एंड द सेक्टोरियल रेगुलेटर्स. ओके, देन द डायरेक्टर्स विल हैव टू गिव अंडरटेकिंग दैट नो इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग. अगर सब सही है तो तुमको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विल बी इशूड इन INC 11A. ओके, देन ये मार्क कर सकते हो इंपॉर्टेंट. व्हेन यू विल नॉट बी अलाउड फॉर कन्वर्जन. अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन, स्ट्राइकिंग ऑफ, यू हैव एनी काइंड ऑफ डिफॉल्ट और द नेटवर्थ इज नेगेटिव. Okay, any kind of striking off is pending, default is done, winding up is pending, directors are in calls, have not paid the call money, a company is in inspection, then you are not eligible for conversion. Common sense है. Now, companies authorized to register under the act. अब कौन सा पार्ट है? Just on the last part of the chapter. Companies authorized to register under the act. It is given under your section 366 of Companies Act 2013. ये किस में प्रोवाइड करता है ना, that your LLP can be converted into company and your society, trust wants to convert into a section 8 company. Okay, these can be called, ये जो प्राइवेट LLP है, सोसाइटी है, ट्रस्ट, इसको हम लोग बोल सकते हैं अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज. अनइनकॉर्पोरेटेड, कंपनी लॉ में नहीं इनकॉर्पोरेटेड, अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज. अब इनको क्या होना है? कंपनी बनना है. ये लोग को कंपनीज एक्ट के अंदर होना है. तो कॉमन सेंस है कि तुम अभी कंपनी के अंदर बनोगे तो कंपनी के सारे नेम, जो नॉर्मल इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज है वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा, और एक स्पेशल फॉर्म भरना पड़ेगा फॉर कन्वर्जन. सो लेट्स सी इसका कौन सा है. अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज, इनके फॉर्म क्या रहेंगे? इट विल, दोनों के लिए, सब के लिए सेम फॉर्म है. दे आर ऑल बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ LLP इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू कंपनी, और सोसाइटी और ट्रस्ट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी. सो कौन सा फॉर्म भरना है उनको? URC 1 एंड URC 2. URC 1 इज अ कन्वर्जन फॉर्म ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज इनटू अ कंपनी, unincorporated entities into a company, and a public notice also has to be given in URC 2. URC is what? Unregistered companies are being converted into company. ठीक है, तो ये हो गया. इनके और एडिशनल क्राइटेरिया होंगे. अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड का कॉपी दो, अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी का MOA होगा वो दो. तो वो सब तुमको ट्रस्टीज के, ऑफिस बेरर्स के सब अटैचमेंट्स देने पड़ेंगे URC 1 के साथ में. सो लेट्स सी अदर प्रोविजंस. अ कॉपी ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न शुड बी प्रोवाइडेड.
NOC of the creditors and regulators एक constant है, copy of the directors, partners, trustee. अगर LLP है तो पार्टनर्स की डिटेल्स दो, अगर कंपनी है, अगर तुम्हारी सोसाइटी है या तुम्हारा ट्रस्ट है तो ट्रस्टी की डिटेल्स दो, वो सब दो, और फिर तुमको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा. तुम लोग ने वो एंटिटी जो कन्वर्ट हो रही है उसके अंदर जो रेजोल्यूशन पास किया है दैट यू वांट टू कन्वर्ट इनटू अ कंपनी, उसकी भी कॉपी दो. अंडरटेकिंग फ्रॉम द प्रपोज डायरेक्टर्स, तो जो भी नए डायरेक्टर्स है दे हैव टू अंडरटेक दैट दे विल कंप्लाई विद द एक्ट एंड दे हैव नॉट डन एनी फ्रॉड. अब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करते क्या क्या डिटेल्स चाहिए? कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स होंगे तो डायरेक्टर्स का पहले कंसेंट चाहिए हम लोग को, DIR2, consent of the directors that they are ready to act as the directors. One, they tell us कि हाँ ये directors हैं, then the company informs the ROC of the details of the directors. Directors consent is given in DIR2. Details of the directors have to be informed to the ROC in DIR12. बाकी का नेम अप्लाई करना है, स्पाइस फॉर्म है अपना इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के लिए, स्पाइस 32. डायरेक्टर्स हैव टू गेट अ DIN नंबर and also have to get a digital signature certificate. Let's see. तो यहाँ तक जो मार्किंग कर रहा हूँ बस वहाँ तक ही लेना है, not all these points. Now coming for a conversion of LLP into company. क्या बोला इसका स्पेसिफिक फॉर्म कौन सा है? अनरजिस्टर्ड कंपनी 1 and 2. ठीक है, कौन से सेक्शन के अंदर होगा? 366. They can convert himself. Okay, so a process, get the name approval, because you're getting converted into a company, get a DIN, DSC form, URC1, उसके साथ में सारे attachments दो. फिर application by the company, उनको सारे existing details देने पड़ेंगे, उनकी current LLP agreement, सब उनका present का सब information देना पड़ेगा. they have to NOC देना पड़ेगा. ओके, प्रपोज डायरेक्टर्स कौन होंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, वो खत्म. अब तुम देखोगे जो सोसाइटी है और जो ट्रस्ट है उसका पॉइंट सब सेम है. इसके लिए भी कौन सी फॉर्म है? URC1 एंड URC2. URC2 नहीं दिया, मैं बता रहा हूं कि पब्लिक नोटिस करना पड़ेगा. URC1 इज अ फॉर्म फॉर कन्वर्जन. अब तुम कंपनी के अंदर कन्वर्ट करोगे तो कॉमन सेंस से इनकॉर्पोरेशन फॉर्म्स भरने हैं, और जब तुम फॉर्म भरोगे तुम डिटेल्स भी दोगे कि सोसाइटी के मेंबर्स कौन थे, क्या ऑब्जेक्ट्स थे, क्या ऑफिस बेयरर्स थे, कितना कैपिटल था, एवरीथिंग, अ लिस्ट ऑफ द नेम्स. नाउ जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए NOC, टैक्स रिटर्न्स, नो ऑब्जेक्शन, वही सेम पॉइंट्स नीचे भी है. ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जब यहाँ पे यू आर कन्वर्टेड इनटू अ सेक्शन 8 कंपनी, a trust or a society has been converted into a section 8 company, then the license is granted by the central government in INC 16. तो ये INC 16 के अंदर है. अब ये तुम्हारे इनकॉर्पोरेशन फॉर्म URC1, स्पाइस फॉर्म, MOA, AOA, DIR2 में उनका कंसेंट लेना है, DIR12 में कंपनी विल इन्फॉर्म, एंड दैट इज इट, देन द chapter gets over. This also summarizes the chapter. The important conversions are covered here. Market is important. Okay, that is it. Then we are done with the chapter.